अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੋਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਵਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰਲਕ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਖੈਰ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਖਾਲਿਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਵੜੈਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਸੱਚਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਸ਼ੁੱਕਾ ਪਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੱਝ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨੋ, ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆਈ ਜੰਝ ਅਤੇ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੰਝ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਵਿੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੁਣਾਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਾ ਸੁਣ। ਹੈ ਸ਼ਰੀਫੋ ਤਬਾਹ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਲੀਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਲਿਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧ ਪਜੱਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਇਦੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਨੀਏ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਔਰ ਹਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਔਰ ਹਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਫਾਤ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਚੁਣਾਂਚੇ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਣਾਂਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦ ਲਓ। ਫਿਰ ਸੱਦਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 5-4 ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਆਪ ਅੰਕਲ ਖਾਲਿਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੂਹਾ ਸ਼ੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅੰਕਲ ਖਾਲਿਦ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੋਈ ਸਭ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ,
क्यों ये कीदा नहीं कुरान शरीफ की रूह नाल हज़रत ईसा आसमान ते नहीं ने? मैं कहा नहीं। वो पादरी ने भी अखां पाड़ के वेख्या ते अंकल खालिद भी चंगा इंज करके उन्हें आख्या की भैन दो? मैं गल ही इंज जे कुरान शरीफ दे विच हज़रत ईसा दे आसमान ते जाने वाली गल है तो मैनूं कढ के विखाओ, इत्थे कुरान शरीफ तुहाडे कोल होना, नहीं तो लै आउने। उन्हें आख्या जी वो अल्लाह ताला ने उन्होंने उठा लिया। तो मैं आख्या उठा तो अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੂਤਾ ਦੇ तो गुस्से च आके तो यही आंदी तेनू रब ले, तेनू रब चुके। तो चुकन का मतलब ये थोड़ी वो आसमान ते चुक के लै गया। आखिर नहीं रफ़ा उल्ला आया। मैं आख्या नहीं ये तुसी गलती ते हो, रफ़ा तो सारिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। वो आम मुसलमान भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ नमाज़ां 'ਚ यही दुआ करदा वाजबुरनी व रफ़ानी वाली जी। और वैसे भी रफ़ा का लफज जोड़ा वो बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो नतीजे रफ़ा जिथे आया नहीं तो उत्थे बंदा जमीन तो चुक के आसमान ते लै गए। अल्लाह रफ़ा का मतलब बुलंदी दर्जात, पर गल वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है उन्होंने दलाइल का। जिहड़े वेले गल होई तो उन्हें आख्या फिर हज़रत ईसा, मैं आख्या जी ना वो गए ने आसमान ते ना उन्हें आसमान तो पिछे परतना, वो तो फौत हो गए। और वो अज़रूए कुरान भी फौत ने तो अज़रूए इंजील भी फौत ने। वो इंजील का जोड़ा मैं जोड़े मेरे जहन च रैफरेंसिस उस टाइम मौजूद सन, तो मैं उन्होंने दसिया कि भी वो तो कमरानुमा कबर सी, वो रहे। वो तो बाद 2-3 दिन बाद जदों उन्हों का एक साथी है उन्हें वेख्या तो फिर उसके बाद उन्हें उतों लैके उन्होंने कबर चों हिजरत हो गई उन्होंने। और वैसे भी सलीब तो जिंदा उतारे गए सन। और वो क्राइन ने और ईसाई तहकीक भी जड़ियाँ ने, खास तौर पर जोड़ा अल्फाज इस्तेमाल होंगे ने कि जो उन्होंने नेज़े की अन्नी चबोई गई तो अंग्रेज़ी चाहते हैं ब्लड गश्ड आउट, कि खून उबल के बाहर निकलिया फवारे की तरह। तो वो जिदा सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं सी पे चलता, मरे बंदे का तो कोई नहीं मतलब ब्लड श्लड हर चीज़ उत्थे अपनी थां ते जाम हो जाती। तो जे वो गए ही फौत हो गए सन तो उत्थे सलीब ते फिर वो नेज़ा चबाउण नाल गश्ड आउट वाला कितों मतलब खून इस तरह नहीं सी निकल सकता। गल्लां जो उन्होंने दसियां अज़रूए इंजील भी और अज़रूए कुरान तो मैं आख्या है ही फलम्मा तवफ़्फ़यतनी। तो वो थोड़ा जा जाहिर है कि वो वास्ते नवीं गल सी। तो उन्हें आख्या अच्छा एक मिनट, फिर मैं तुहाडे वास्ते चाह ते आखां। वो उठ के ते अंदर गया तो वो गल्लां दा ते चेहरे का जो फिर रंग भज जाता, बंदे नूं पता लग जाता। तो वो अंकल खालिद मेरे नाल ही सोफे ते बैठे थे, अज मेरे हल हो के ना काने च बड़ी सरगोशी च आंदे ने ये जेड़ा ना ये तो थिड़क गया, ये कोल दलील हुण कोई नहीं बची। तो जे हुण मुसलमान होण लगा ना तो ये अपने वाला नहीं जे करना, जोड़ा आमदियाँ वाला ये साढ़े वाला मुसलमान करना, ये मेरा सी मतलब सादा इन्हें और इन्नी शरीफुन नफ्स सन। मैं ये आना कि चूँकि शरीफुन नफ्स सन उन्होंने जहन च बददेहानती कोई नहीं सी, इंटलैक्चुअली डिसऑनेस्ट नहीं सन। मैं आख्या अंकल तुसी फिक्र ना करो, ना ये मुसलमान होने लगा ना इन्हें होना है, ये पादरी है उन्होंने मतलब मजहबी तुहाडा मौलवी भज के होंदा कदी कदी। इस वास्ते ये दयानतदारी दीयां गल्लां ने तो अल्लाह ताला तौफीक दे तो हो भी जाते हैं बंदे, लेकिन इंज भज के नहीं होने लगा। तो तुसीं तसल्ली रखो, तो जो होया भी ना तो तुसीं रख लिया जे सानू एक अद्धे नाल कोई नहीं फर्क पैंदा। दूजी गल ये कि असीं अपनी बाल के सेकने, इंज नहीं तुहाडा हुक्का भखिया तो दुआले आके बह जाइए भी आओ जी असीं वारी ला लीए। ये तो मैं आख्या सानू डेरे साडे दादे ने नहीं सिखाया, तो जमात ने सानू ये कित्थों वल दसना सी भी तुसीं इस वास्ते साढ़े को झाका करने की तुहानूं कोई नहीं जरूरत। तो वैसे ये मुसलमान नहीं होंदा, फिक्र ना करो उन्हें मुसलमान होने तो पहला होर भी बड़ा कुछ वेखना, उन्हें तुहानूं भी वेखना। बहरहाल वो हाले जिउंदे जागदे ने। और अक्सर कदी कदी गल होवे तो आंदे ने नहीं भी ये गल तो होई सी, ये वाकया होया सी। एक यानी रिसालत लैवल ते एक गल तुसीं नोट कर लो। अगला वाकया वो है हस्ती बारी ताला दे लैवल ते, क्योंकि कल यही मौजू सी कि भाई तुसीं भज के तो अहमदिया खिलाफत के उत्ते जुबान दराजियां करना लाउंदे हो। थानू अहमदिया लीडरशिप और खास तौर पर इमाम जमात अहमदिया का जोड़ा खलीफतुल मुस्लिमीन का जोड़ा स्टेटस है वो तुहाडे हलक तो नहीं उतरता, थानू दी बड़ी तकलीफ हुंदी है, हुंदी रवे। लेकिन गल ये कि कोई ग्राउंड रियलिटीज़ वाल वापस आओ ना। निरा उत्थे बह के तो हाई कोर्ट च एक पटीशन कर लैनी, तो उतों 4 वकील मतलब नारेबाजियां कर लैनियां, उधरों सराजो लग जाए तो वो चूँकि हाली तक बहरहाल
ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, तो जी वो खबर भी बन गई, तो लग भी गई 4-5 कालमी के जी सैनेटर सिराजुल हक ने करारदाद जमा करा दी। ਤੁਹਾਡੀ करारदाद जमा कराने का होना की है? गल करनी जे तो इधर आके करो, सामने बह के गल करो। फिर जे कोई गल है तुहाडे कोल ते रिसालत के उत्ते तुहाडा की मौकफ है? हुण तो तुसीं हर शय तो अपने मौकफ तो एक तो बेखबर हो, जिन्हें बेखबर नहीं हो भज गए ने। मतलब अलामा जावेद गामदी जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते बेखबरी का या बेइलमी का इल्ज़ाम तो नहीं लाया जा सकता। तो वो तो मन्नी बैठे ने भी कोई कुरान शरीफ दे विच आसमान ते चढ़न वाली गल नहीं, तो कोई मतलब दोबारा आउण वाली गल नहीं। इहदा मतलब है कि मतलब जिहड़ा है ना सूत्र जिहड़ा ना तुहाडा वो सारा आपस विच उहदियां गंढां वज गईयां ने। तुसीं साडे नाल इस तरह की वाहियात किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ और वाहियात किस्म दी कंपेनां चलाउण तो पहलां तुहानूं अपनी पीढ़ी थल्ले डंगोरी फेरनी चाहिए है। तुहानूं वेखना चाहिए भी तुहाडे पल्ले की ये तो मतलब उत्थे उत्थे तुहाडी की स्ट्रैटेजी की रही है पाकिस्तान छोड़ तक? गुफ्तगू और मुकालमे का तो तुसीं रस्ता बंद कीते है। तुहाडी स्ट्रैटेजी ये है कि वन साइडेड सानू हर तरह की इल्ज़ाम तराशी, हर तरह की बकवास, हर तरह के इन्हां दे खिलाफे वाक़या, इन्हां दे बारे प्रोपेगेंडा वो करन दी भी इजाज़त होवे। मीडिया तुहाडा पार्टनर है पिछले 50 साल तो, और मीडिया के जिहड़े मुख्तलिफ इदारे ने वो तुहाडे हत्थ ते बैतशुदा ने, और तुसीं सारे रल के अंदरों ना तो तुसीं खुदा नूं मनदे हो, ना तुसीं रसूल नूं मनदे हो, ना तुहाडा तसव्वुरे हस्ती बारी ताला जिहड़ा तुहानूं आखी अगले दिन भी मैं गुजारिश की भी तुसीं गल करनी है मजहबी माखज़ दे उत्ते और मजहबी अकायद दे उत्ते, और तुसां प्यो बनना है इस जमाने च। मतलब है कि जे असीं बड़ा कुछ हाँ तो तुसीं फिर टुरो मजहब की तो गल, खुदा के तसव्वुर तो बगैर तो मजहब की गुफ्तगू ही नहीं हो सकती। आओ पहले करो हस्ती बारी ताला दे बारे च गल, की तसव्वुर है तुहाडा खुदा दा? की लई फिरदे हो जिहड़ा सानूं की दुनिया नूं की वेचना की चाहते हो? तुहाडे कोल की है? उस दे बाद आ जाओ रसूलां वाले तुसीं मनदे हो तो फिर रसूलां दे तसव्वुर दे उत्ते गल करो। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिटहुड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिटहुड जिहड़ा नबूवत जिहड़ी है उहनूं की समझदे हो तुसीं? वो कदी तुहाडे बाज़ मतलब वो सारा कुछ असां भी तो पढ़िया ना, अन्ने तो कोई नहीं ना, दिसदा तो पिया ना। कईयां दे नज़दीक रसूल जिहड़े ने नूर हो जाते हैं, अद्धियां दे नाल बशर ने। मतलब वो हवाले जिहड़े ने वो कोट करने भी जिहड़े ने काबिल शर्म ने तुहाडे। ना तुहाडे कोल हस्ती बारी ताला दे उत्ते क्लैरिटी है, तुहाडा दिमाग बिल्कुल इहदे क्लीयर नहीं है, ना तुहाडा रसूल और प्रॉफिटहुड और नबूवत के मामले तुहाडा कोई तसव्वुर वाज़ेह है, ना तुहानूं इहदे उत्ते कोई गुफ्तगू है, ना तुहाडा इहदे उत्ते कोई लिटरेचर एक्सक्लूसिवली छपिया होया। उस दे बाद रिसालत तो बाद इमामत खिलाफत इहदे उत्ते तुहाडे कोल की है? की बेचना चाहते हो तुसीं? लई की फिरदे हो? तुहाडी पटारी च की है? कढ के तो विखाओ सानूं की लई फिरदे हो तुसीं? कोई तुहाडे पल्ले शै होवे तुसीं अगले गल कल किसी दोस्त नाल गल भी हुंदी सी फैसलाबाद ही, उन्हें आख्या इन्हां दा हालत तो यह वे कि साडे छन्निए शै कोई नहीं, तो अहमदियां दी कटोरे दे उत्ते डांग मार के उन्हां दा भन छोड़ो। अल्लाह दे बंदे हो तुसीं गूगल वाल तुर पे हो तो मतलब लंगोटा करके तुसीं सारे भज वगे हो उधर विकीपीडिया वाल ते गूगल वाल। की उन्होंने जाके आखना जे कि साडे कोल तो खिलाफत है कोई नहीं, इन्हां कोल है वे तो इहनूं तुसीं मिटाओ इत्थों। ये तो तुहाडी करतूत शुरू तो रही। वो मौलवी मंजूर चनोटी उत्थे आंदा जी इत्थे हस्पताल इन्हां दे च मरीज़ बहुत जाते हैं और उहदे नाल कुफर फैलदा, लिहाजा इन्हां दा जिहड़ा हस्पताल है उत्थे रब्बे वाला उहदे ते पाबंदी लाओ, बैन किया जाए, सील किया जाए। वो कोई बंदे का पुत्तर सी, कोई समझदार सी, उस आख्या मौलवी ये कोई तरीका नहीं गल करन दा, तू इंज काम करना जिहड़ा रब्बे बनया फजले उमर हस्पताल उस तो बेहतर अच्छा हॉस्पिटल, उस तो अच्छी फैकल्टी रखने वाले, उस तो अच्छा डॉक्टरों का स्टाफ और टीम रखने वाला, इंटरनेशनली रैकगनीशन रखने वाले डॉक्टर जिहड़े ने उन्होंने चिन्होट हस्पताल तू बना देना। तो लोगों का दिमाग खराब है वो चिन्होटों रब्बे जान, फिर वो उत्थे और उन्होंने सारिया सहूलतां उन्होंने सारे एटिकेट्स के नाल उन्होंने दे दिओ। तुसीं आप तुसीं बनाया कुछ नहीं, तुहाडे कोल उत्थे तहसील हैडकुआटर दे विच सरकारी हस्पताल जिहड़े ने वो नहीं पे चलते, वो अपने प्राइवेट कैपेसिटी दे विच अगर बना के बैठे ने, आप भी उन्होंने पब्लिक उहदे तो फायदा उठा रही है, तुहाडे भी जांदे ने
60-40 ਦੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਆਖਣਾ ਜੀ 150 ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 100-200, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇ OPD। ਉਸ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ OPD 'ਚ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਲ ਔਰ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੇਗੈਜ਼ੇ ਕੁਮ ਦਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਜ਼ੇ ਕੁਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਵੋ। ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਖਿਲਾਫਤ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਉਮਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਆਨਸਰੇਬਲ। ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਜੇ ਬਰਸਬੀਲੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕਜੀਆਂ ਔਰ ਦਿਲੀ ਔਰ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਟੇੜਾਪਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਦਾਵਰ ਵਜੂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਫਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਖੁਲਫਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਟੱਚੇਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਫਤ। ਔਰ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਲੈਬਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਦਿਕ ਅਮੀਨ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर दैट। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਸਤੀ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ, ਬੈਠਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਕਾਲਜ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਟਿਕਾਵੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਛੜੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੋਇਆ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਕੋਠਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਛੱਤਾਂ ਟਪਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤਸੱਵੁਰ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਤਸੱਵੁਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਤੀਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਸ਼ੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ
पहले दिन तो बानी जमात अहमदिया ने किस्सा कहानी वाले खुदा की तनसीख की। फरमाया ए नादानो अंधो, खुदा वो था जो हो सकता है जो गोशा गुमनामी की कब्र में पड़ा हुआ था और तुमने और तुम्हारे फिलासफरों ने उसे निकाला। मतलब मुअय्यन अल्फाज डिफरेंट होंगे, लेकिन उन्होंने कहा भी खुदा वो हो किवें सकता है जिहदा ना कोई नड़ी डट्टा ना अग्गा पिछा, उन्होंने तुसीं ते तुहाडे आलमां ते तुहाडे फाजलां ते तुहाडे फलसफे दे प्रोफैसरां ने ओहदी गुमनामी दी कब्र चों कढ के ते तुहाडे अगे पेश कीता है खुदा इहनूं मान लो। वो किस तरह खुदा हो सकता? लिहाजा फिर हस्ती बारी ताला दे उत्ते हुण मैं वो सारा लिटरेचर इस तरह तो नहीं रिपीट कर सकता, लेकिन बहरहाल चूँकि जिहड़ा वे तसव्वुर खुदा दिता वो अपने मौजूद होने दे और अपना साथ देने दे, अपने नाल ताल्लुक रखण दे, अपनियां सारियां सिफात दे विच अजली अबदी खुदा हुंदा है। वो खुदा तो तुहाडा है कोई नहीं, गूंगा ते बहरा वो खुदा तुसीं लई फिरदे हो। किसी परत के नहीं पूछा भी क्यों भी वो जी इलाम बंद हो गया जी, वो नहीं हुण गल करता जी, वो बस जी पिछा रह गई। ये तुहानूं चरस वेची है मौलवी ने कि वो कोई अकीदा थोड़ी है। किसी बंदे के पुत्तर ने उन्होंने पूछा मौलवी ने क्यों नहीं बोलता भी, वो अगे बोलता सी तो क्यों बोलता सी, हुण नहीं बोलता तो क्यों नहीं बोलता। दूजी गल है तेरे को पूछ के बोलना है उन्हें मौलवी को। तुसीं अपनी बेवकूफियां ते जन्नत और अमकां दी जन्नत सरवाइव कर सकते हो उदों तक जदों तक साडे नाल तुसीं मतलब इंज दी नंगी छेड़छाड़ ते ना उतरो। जे तुसीं मूँह भर के आओ ना, मतलब कि जिन्होंने माँ ने जम के चट्टिया नहीं उन्हें उठ के आखना भी मैं अहमदियां दे खलीफे ते गल करनी है, फिर असीं तुहानूं पुछना है कि किहड़ी शायद गल करनी, फुदकदे किहड़ी गल ते पे हो, पल्ले की तुहाडे। तारीखी तौर पर मिर्ज़ा साहब की बस तो पहला 1899 तो पहला तुहाडे फिर भी कोई अगा पिछा आया सी, तुहानूं फिर भी कोई सद पोछे समझे जाते सो। जिदन दी तुहानूं ये खुदा ताला ते फरिश्तादा नाल नंगे हो के सामने मुखालफत करन दी लानत पई है तुहाडे ते, उस तो बाद किन्ने मुल्क रह गए ने हुण तुहाडे कोल? 72-73 मुल्कां तो शुरू होए सो, तो कित्थे तक आ गए? ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਨਹੁੰ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ, ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਮਾਲਿਕ ਔਰ ਮਮਲਕਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, मतलब ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਊਰ ਔਰ ਫਰਾਸਤ। ਇਹ ਅਵਲੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲੀ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। चूँकि तुसी आप जदों दिल करे जिहड़ी मर्जी पटारी चो जीवन मर्जी सपोलिया चुक के तो उन्होंने आख लेंदे हो कि यह साडा सरबराह है। इस वास्ते तुहाडे नाल गुफ्तगू नहीं मजीद हो सकती कि तुहाडा तसव्वुर ही इंसान लीडरशिप का जिहड़ा वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अगे अमीरुल मोमिनीन कल किसी दोस्त ने उन्होंने फेसबुक तो स्टेटस से उन्हें भेजी वो एक तस्वीर, बल्कि वो अपना जिहड़ी वो जुमले कसदे ने, उन्हें इमरान खान की तस्वीर दे उत्ते उन्हें आख्या बई ये अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये तो हुण अखीरुल मोमिनीन हो गया। तुहाडी अखीरुल मोमिनीन दी होया, तुहाडी अपनी भी अखीर होई पई और वो जांदियां जांदियां मतलब हुण किहड़े तशबीह दियां तुहानूं कि किहदे नाल कौन इंज करदे ने। चंगा काम सी वो अपना ताहिरा सराह है उत्थे ननकाणे दी शेर कहिंदी पंजाबी च, तो वो है तो बाद चुलबले जी होंदियां ने गज़लां, लेकिन बाहर वो कदी कदी जिन्हें लिखना उन्हें कोई ना कोई गल भी कर लैनी। वो अगले दिन वह शेर सुनिया कि मेरी मन ते अपने अपने राह पईए, मेरी मन ते अपने अपने राह पईए, की कहना है जिन्नी होई बथेरी नहीं। तुसीं कोई सोचो तो तुहाडे नाल जिन्नी हो चुकी वो ही बहुत ज़्यादा। तुसीं इन्हां चों किसी शै नूं मतलब रीबिल्ड नहीं कर सकते। जे तुसीं
वाकयातन जे हुण अकीदियां दी गल पुछदे हो ना, तो जे तुसां वाकई तुहाडे चों इस्लाम की खुशबू आ सकनी होवे, जे वाकई तुहाडे तसव्वुरे रिसालत और तसव्वुरे हस्ती बारी ताला और तसव्वुरे खिलाफत और इहदी अंडरस्टैंडिंग अपनी दुरुस्त और बिल्कुल इंटैक्ट हालत च होवे, मिर्ज़ा साहब की लोड़ ही केड़ी सी? उन्होंने तो खुद कहा कि मैं तो नहीं आया, मैंने तो तुसां सद के लिया, तुहाडी हालत ने तकाजा किया। उतना च उस दोस्त ने जो दसिया कि अंजन उन्हें हस्ती बारी ताला के उत्ते इस तरह का शेर पढ़िया, तो मैंने तो बड़ी नमोशी हुई है। टुर गए इस्लामाबाद चले गए 2-3 दिन ना, लेकिन वो जो मिसरा सी ना कि रहमत रब दी मैं मंगदा सा कोठा चोण तो पहला पहला, वो टिक गया और दिल च आया भी ये अल्लाह ताला ही है। बार चूँकि शेर दे विच है थोड़ा बहुत मतलब एक कैफियत ना लिखी दा भी है, वो सिलसिला ख्याल दिमाग चलता भी है, तो नॉर्मली मेरे और वह लभो लहजा भी जो सियालकोटी पंजाबी वाला पहला पहला असी जेडे इधर दे सांदल बारते हैं, असी पहला नहीं असी पालू आने हैं, या मतलब वह जरा भारा पाने वो जो टिल्ट है उंजदा नहीं। वो दूसरे तीसरे दिन अल्लाह ताला ने फजल किया तो एक बार पूरी काफ़ी सारे शेरों की गज़ल हुई, तो मैं उस दोस्त ने फ़ोन पर सुनाई, उस आखे हूँ मैंने फ़ौरन भेज दो, हूँ मैं अपड़ा आवां जाके, तो वो जवाब दे दिता सी। लेकिन बहरहाल उस तसलसल दे विच अज मैं वो गज़ल का भी इंतखाब रखा करके वो प्रोग्राम के आखिर तो मैं वो सुना देना, उसके बाद फिर इजाज़त लेने। वो वजह यह कि एडी छेती साढ़े आखे लग के तो इन्होंने बाज आना कोई नहीं। हाँ ये है कि अपना ओला लवा लैणगे जदों जदों इन्होंने गल करनी है। कुछ चीज़ां मतलब सानू कुत्ता बिल्ला आंदे फिरदे जो मर्जी कहते फिरदे तुहाडा है वही तुहाडे तो तवक्को तुसीं करी रखो, लेकिन अहमदी खिलाफत अहमदिया के उत्ते बक बक करने की ना इजाज़त देंदे ने ना उन्हें बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो लीडर नहीं ने। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अहमदियां दे सिर्फ लीडर नहीं ने, वो उन्होंने रूहानी सरबराह ने, वो खलीफा वक्त ने। तेरे आउण तो पहला पहला सुफने सौण तो पहला पहला अपने अंदर झाती पा लो नेरा होण तो पहला पहला अपने अंदर झाती पा लो नेरा होण तो पहला पहला अथरू पानी रह जाते ने मोती होण तो पहला पहला ते छाननी दी भी गल ते सुन लो, छाननी दी भी गल ते सुन लो छज वजाउण तो पहला पहला ते लोकी सारे चंगे लगदे भैड़ियां होण तो पहला पहला ते डर लगदा सी नेरे कोलों, डर लगदा सी नेरे कोलों वेड़े सौण तो पहला पहला दिल दियां गुंजलां सारियां कढ लो वखरियां होण तो पहला पहला अथरू आए ते गल ही मुक गई गल्लां रोण तो पहला पहला ते सारे साक कबीले है सन, सारे साक कबीले है सन तेरियां होण तो पहला पहला झूठियां पै के वेख ते लैंदे, झूठियां पै के वेख ते लैंदे सच्चियां होण तो पहला पहला। बाज़ दोस्तों ने जो सुनाई था तो एक फ़िक्रा बोलते हैं और ज़ाहिर सिलसिला ख्याल उत्थों ही आया कि सच्चे होकर झूठों की तरह तजल्लुल इख्तियार करो, झूठियां पै के वेखते लेंदे सच्चियां होण तो पहला पहला ते कच्चियां कंधां आपे ही ढालो सावन आउण तो पहला पहला। और आखिरी उस प्रोफैसर की गल का जवाब सी कि मंगनी जे ते रहमत मंग लो फैसला होण तो पहला पहला तेरे आउण तो पहला पहला सुफने सौण तो पहला पहला। ये जनाब गल तसव्वुरे रिसालत तसव्वुरे खुदा तसव्वुरे खिलाफत इन सारिया चीज़ों ते खाली भांडे खड़काई फिरदे हो ते इस
मबलग इल्म और मबलग ईमान और इस मबलग इकान और इस तरह के जिहड़े तुहाडे कोल इट्टां रोड़े जेबां च इकट्ठी कीती फिरदे हो, उहदी बुनियाद ते तुहाडा दिल होवे कि तुसीं उस खिलाफत अहमदिया नाल टकराण दा फैसला करो जिन्हों ला यस्तखलिफन्नहुम दी ताईद हासिल है और वला युमक्किनन्नहुम दा वादा उहदे नाल मौजूद है। ये मेरी सुनो तो पहाड़ों से सर न टकराओ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।